We'll be talking about battle against coronavirus and how to build your immunity during these times. जो बहुत मुश्किल होता जा रहा है सबके लिए. And my name is Kabir Grover and I'm your host today. Welcome to Health by Kilo. It's my first podcast today and we'll be talking about coronavirus and immunity. Our guest for today is Aman Gangwani, who's a certified sports nutritionist and a fitness enthusiast. And he's also a doctor. You heard that. Hi Aman, how are you? I'm good. I'm good. How are you, bro? I'm very good, thank you. So, कोरोना का आजकल आपको obviously पता है ज़्यादा ही हो गया है बहुत ज़्यादा सबको and not too many people know about it. They know the basics, but we'll get into the details, how to build immunity, the food, water, supplements, and end में it's gonna be the best part, the fun part, the conspiracy theories. I looked up a few and I wanted to talk to you about them. So, first, आप अपना बता दो whatever you want to tell everyone about you and also however you want to start. It's all you now. Hi guys. This is Dr. Aman Gangwani this side. I am a certified nutritionist, and currently I'm pursuing sports nutrition. I have even worked as a JR in a government medical college in emergency medicine. So, as you all know, कि आजकल कोरोना का बहुत ज़्यादा, अगर आप हिंदी वर्ड्स में बोले तो बवाल चल रहा है. तो बेसिक नॉलेज तो सभी के पास है. Like everyone is watching the news channel, everyone is hooked on to the news channels, and everyone is, on the net, just looking for corona. I think most searched topic of the year जो है वो कोरोना ऑलरेडी बन चुका है in few days में. So I really won't get into that much detail, just basics जो लोगों को confusion होता है सिर्फ उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. So you tell me, Kabir, how should I start? Like to and fro conversation. So I wanted to know कि people are saying it's a virus that started in Wuhan village in China, and they think that it's just one type of virus. So मैंने पढ़ा था it's not just one type of virus. So I wanted you to clarify that for everyone. See, coronavirus is actually not just a single virus. As we all know, कि viruses they are like, in layman terms you can call them parasites. Not exactly parasites which attack you from the outside, but from the inside, as in they'll attack your cells. They need a host. So your cell, your basic body cell, is basically the host, and it'll latch on to your cell. We'll discuss the structure later, तो उससे clear हो जाएगा कि कोरोना वायरस का exactly structure क्या है जिसे वो attach करता है. तो it attaches to the cell. It basically injects, or you can say it puts inside its genetic material, जिससे it takes over your nucleus. It takes over your nucleus and it basically makes your nucleus replicate that particular RNA. Basically, it's an RNA virus. तो जब वो replication होता है, it keeps on replicating till the time that particular cell it bursts open. मतलब वो फट जाएगा cell जब तक वो अंदर उसका पूरा genetic material multiply हो के इतना बढ़ जाएगा, और वो जैसे ही burst होगा फिर वो particular virus जो है आगे और further cells को invade करेगा और वो ऐसे infection जो है वो बढ़ता जाएगा. Okay, and that's the incubation period. That's what everyone calls the incubation period, right? Yeah. When it's multiplying incubation inside period, अगर आप उसको simple terms में अगर put in करो तो it is basically the time between when you acquire the infection and the symptoms they appear. मतलब symptoms आना शुरू होंगे जब आपने infection acquire कर लिया. उसके बीच का जो basic period है, that is incubation period, या कह सकते हैं बीच का जो window period, जो भी कह रहे हो आप उसको. तो जो विंडो पीरियड है वो वेरी कर रहा है. इट इज नॉट फिक्स्ड. जो एवरेज वैल्यू दी है इट्स अराउंड 6 to 8 डेज की वैल्यू दी हुई है एवरेज. बट इफ यू लुक एट इट तो लोगों को सिम्टम्स जो हैं वो इवन आफ्टर 21 डेज भी आ रहे हैं. 14 to 21 डेज के बाद भी सिम्टम्स आ रहे हैं. Okay. Yeah. Okay. So that means that even if you have it, if you are a carrier,
even if you don't have the symptoms, you're gonna be spreading it. मतलब औरों को आप दे सकते हो बिना जाने कि आपके अंदर है वो चीज. डेफिनेटली That डेफिनेटली. is scary. एक्चुअली इस वायरस का एग्जैक्टली किस हिसाब से असर हो रहा है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग पे, the researches are still going on. No one has a definite answer. If you look Okay. at the official WHO website, तो वहां पे भी it says कि the researches are going on and keep visiting the WHO page for more details. Okay. उसके अलावा वो और कुछ नहीं बोलते हैं उसमें. तो उनके तो अपडेट्स आते जा रहे बेसिक होंगे. चीज वही है कि updates, they keep on adding the updates. ठीक है. Okay. हाँ जी, you were saying something. What were we talking about? You were saying क्या चल रहा था topic? WHO बता रहा है कि about the updates. तो अपडेट्स तो आ ही रहे हैं. तो बेसिक वो चीज है कि अभी रिसेंट अगर आप एक अपडेट देखो तो अभी दे आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस स्ट्रेन्स. तो Okay. स्ट्रेन्स का Oh, मतलब right. ये हो गया कि द वायरस जो है उसके डिफरेंट वो आ गए हैं. मतलब जो अभी उन्होंने बताया है ऐसा, बिकॉज देयर इज नो डेफिनेटिव नॉलेज राइट नाउ, द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन. देयर Okay. इज there is a L strain, Mhm. L for Lucknow, L strain, and there is a Okay. S strain, S for Sitapur, S. So Okay. they are saying that ये दो different type के strains हैं and they are affecting the human body differently. And one Oh, okay. strain is basically more deadlier in comparison to the other strain. Okay. So ठीक है. this is like the basic thing, but no one has a definitive answer for हाँ now. जी, that's right. ठीक है. So the next thing I want to know is, what are the types of transmission? मतलब, it's the droplets, and I heard it also gets transmitted through stool if people use the same toilet. Mhm. So Mhm. is that it? कि कोई और So भी है जो? basically जो अगर आप गाइडलाइंस भी देखो तो जो 2 या 3 मेजर स्टेप्स जिन पे बार बार इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, वन है सोशल डिस्टेंसिंग, Yeah, that's नंबर right. 1. और जो दूसरा है वो आपका बोला जा रहा है रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करने को, और जो तीसरा है वो हैंड हाइजीन के लिए बात हो रही है. तो हाँ जी. मैं इसी से कोरिलेट करके आपको बताऊंगा कि क्या है एक्चुअली मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका. सो पहला जो मोड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड है, दैट इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड हो रहा है. सो ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली व्हेन अ इन्फेक्टेड पर्सन मे बी सिम्टोमेटिक मे बी एसिम्टोमेटिक, हो सकता है उसको पता भी ना हो उसको इन्फेक्शन हो, हाँ जी. तो वो जब खांसेगा या छींकेगा, यानी कफ्स और स्नीजेस, बेसिकली जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके जो एक्सपेल होते हैं बाहर, तो उसमें वायरस होता है. तो Okay. if you inhale those droplets, तो the virus enters your body. Oh, okay. ठीक है. एक तो ये चीज हो गई. अब नंबर 2, इसमें ड्रॉपलेट से रिलेटेड एक चीज ये और आती है कि जब ड्रॉपलेट्स जो हैं, बिकॉज दे आर हैवी, मतलब Yeah, that's उसमें right. वाटर कंटेंट होता है ड्रॉपलेट्स में, तो दे सेटल डाउन वेरी क्विकली. तो उनका Okay. जो डिस्टेंस होता है वो 1-2 मीटर से ज्यादा वो ट्रैवल नहीं कर सकते, जो ठीक बेसिक है. So that's डिस्टेंस है. तो उसके ठीक है. बाद ठीक है. तो उसके बाद जब वो सेटल करेंगे तो हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो नियर बाय है उस पे जाके सेटल कर जाए. हम्म. आप किसी चीज, ठीक है. आप फॉर एग्जाम्पल कोई चेयर पड़ी है या कोई टेबल पड़ी है या कुछ खाने का सामान पड़ा है, कुछ भी पड़ा, एनीथिंग, बी इट एनीथिंग, उस पे जाके सेटल कर गए. फिर जो कोई और पासर बाय है या किसी और बंदे ने उस पर्टिकुलर चीज को हाथ लगा लिया, तो वो पर्टिकुलर चीज जो है वो उसके हाथ में आ गई, वो हाँ इन्फेक्शन जी. आ गया उसके हाथ में. और उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, जो इन्होंने रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करने, ये है रेस्पिरेटरी हाइजीन की तो बात हो गई, हैंड हाइजीन की बात आ जाती है वहां पे. हाँ सो जी. अगर आपने टाइमली अपना जो 70% प्लस अल्कोहल रब्स की बात हो रही है, सैनिटाइजर्स की बात हो रही है, So that's sorry, that's रेगुलरली हैंड वॉशिंग की बात हो रही है. हाँ जी, isopropyl या alcohol is the main in everything, right? Sanitizers and what the या doctors use. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही मेजरली बेसिकली एक वो है आपका कंटेंट उसका. सो द परसेंटेज इन अ पर्टिकुलर सैनिटाइजर और हैंड रब व्हिच यू आर यूजिंग, द परसेंटेज शुड बी मोर देन 70%. Okay. तो अगर वो ठीक है. 70% से ज्यादा है तो इट इज इफेक्टिव, सिंपल. Okay. ठीक है. तो वही है. तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू कई तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है. जैसे किसी बंदे ने, मैं जैसे बता रहा था, हाथ लगा दिया उस पर्टिकुलर चीज को और हाँ फिर जी. उसके बाद उसने अपना मुंह छू दिया, नाक छू दिया या ऐसे अपने कहीं पे हाथ लगा दिया, तो वो इन्फेक्शन उसमें स्प्रेड हो गया.
ठीक है। तो एक तो ये दो मोड्स तो ये हो गए आपके, हाँ जी। जहाँ पे आपका कोरिलेशन आ गया उन दोनों चीज का, एक हैंड हाइजीन का, एक रेस्पिरेटरी हाइजीन का और सोशल डिस्टेंसिंग का। फिर इसके बाद जो द क्वेश्चन विच यू रेज कि इफ इट इज स्प्रेडिंग थ्रू स्टूल्स और नॉट, या सो अकॉर्डिंग टू WHO इट इज नॉट। स्टूल्स के थ्रू ओके कुछ ऐसा इन्फेक्शन जो है वो नहीं स्प्रेड हो रहा है। इफ यू ओके वांट ठीक है। आई शो यू अ टाइल। तो बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, ओके so I'll find it out. Agi, if you have any other question, you can ask me by the time. Yeah, I wanted to know कि everyone knows the common symptoms, the cough, the sore throat and all of that, but ऐसे कोई symptoms हैं जो बहुत rare हैं या new आए हैं कुछ जो ज्यादा लोगों को idea नहीं है? See, time with the time and with more patient exposure, doctor to new conclusions every day. So अभी Yeah. recently CDC ने जो नया अपडेट निकाला है, CDC says chills एक नया सिम्टम एड अप हुआ है, रिलेटेड Okay. शेकिंग विद चिल्स, मतलब जैसे आप समझ लो ऐसे लगेगा जैसे बंदा जो है वो ऐसे ऐसे हिल रहा है और उसको बर्फ ठंड लग रही है, में जैसे आपका ओके 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 मलेरिया के और डेंगू के, हाँ मलेरिया और डेंगू के केस में भी होता है, फीवर विद चिल्स बोलते हैं जिसको हम। ठीक है ओके ओके और ओके उसके साथ मसल पेन हो गया, हेडेक हो गया, सोर थ्रोट हो गया। तो ये दीज आर न्यू सिम्टम्स जो CDC ने ऐड ऑन किए हैं। ओके ठीक है and earlier it used to be like सब बोल रहे थे it only affects the babies and the elderly but now अभी मैंने देखा it's also affecting teens मतलब सबको affect करना शुरू हो गया equally the people with low immunity obviously but it's affecting See, everyone now पहले जो बात हुई थी बेबीज की और एल्डरली की, वो सिर्फ इसी वजह से हुई थी बिकॉज न्यू बॉर्न बेबीज, इन्फेंट्स जो low हैं और immunity छोटे है बच्चे जो हैं, बेसिकली उनकी लो इम्यूनिटी होती है। उनकी yeah that's इम्यूनिटी right इतनी एफिशिएंसी जो होती है इम्यूनिटी की वो डेवलप नहीं हुई हुई होती है, और सेम गोज विद ठीक द है एल्डरली, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है विद टाइम। that's तो right इस yeah वजह से दे आर एट मोर रिस्क। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, सिर्फ इन्फेक्शन उन्हीं को ही होगा, इनकी लो ठीक है इम्यूनिटी इन्फेक्शन उन्हीं को होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट इज ठीक द है ठीक मिथ है कि सिर्फ एल्डरली इफेक्ट हो रहे हैं या बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, एवरीवन कैन बी इफेक्टेड। ठीक है and there's another thing what methods for testing are available there's one with the cotton swab that goes back into your throat and या that's the या common one या right now तो yeah बेसिकली या तो okay बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर टेकिंग थ्रोट स्वैब सैंपल्स। तो okay थ्रोट स्वैब में क्या हो रहा है कि वो सैंपल लेके दे आर परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर मेथड कॉल्ड एज RT-PCR। तो okay RT-PCR में क्या होता है कि दे पुट इन द सैंपल, तो जेनेटिक मटेरियल जो रहता है आपका, जैसे DNA RNA कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो गया, वो उस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को टारगेट करेंगे और okay उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो okay जब वो मल्टीप्लाई कराएंगे उस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को, तो जो इन्फेक्शन अगर बंदा शो नहीं भी कर रहा है, जैसे एसिम्प्टोमेटिक है, विच इज द मेजर चंक, 80% पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक इन दिस केस, तो okay उनके केस में भी हम फिगर आउट कर सकते हैं कि वो बंदा इन्फेक्टेड है कि नहीं है। सो okay फॉर like you नाउ said कि yeah sorry जो आपका हाँ एब्सोल्यूट जी टेस्ट है, जो डेफिनेटिव टेस्ट है, नो, जो डेफिनेटिव टेस्ट है वो RT-PCR ही है। okay बाकी so what जो रैपिड टेस्टिंग किट्स आ रहे थे अभी हाँ जी फिलहाल के लिए, व्हाट आई रेड अ फ्यू डेज अगो कि रैपिड टेस्टिंग किट्स जो हैं वो इतने रिलायबल नहीं है फिलहाल, दे आर ठीक स्टिल है अंडर डेवलपमेंट। okay so what this does is the RT-PCR it multiplies your cells and you can it gets इट enlarged मल्टीप्लाइज द जेनेटिक मटेरियल, genetic material okay इट so मल्टीप्लाइज द जेनेटिक मटेरियल, या that gets enlarged and तो you उसमें क्या it's होगा, pretty visible to you या ठीक है ठीक या है ठीक है ठीक है वो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे ये RNA वायरस है, और हम्म जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये क्या करेगा, आपकी सेल के अंदर जाके अटैच कर रहा है, जो मैंने हाँ जी बताया था न्यूक्लियस के थ्रू ये मल्टीप्लाई करा रहा है अपने आप को। हाँ जी तो आपने इसमें बताया क्या था होगा कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट इन्फेक्शन की सिम्टम्स नहीं शो कर रहा है, तो तब तक तो ये चीज फिगर आउट करना बहुत डिफिकल्ट है कि बंदा yeah इन्फेक्टेड है कि नहीं है। तो हाँ जी उसके लिए ये वाले टेस्ट जो हैं ये बड़े वो है, सिग्निफिकेंट है कि हम इन्फेक्शन जो है उसके पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं कि वो इन्फेक्टेड हो रहा है कि नहीं है।
ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड नाउ आप एक बार ये भी मेरे को समझा दो कि व्हेन इट एंटर्स योर बॉडी, हाउ डज इट, आई मीन द corona is a name coming from the spikes that it has. They are the crowns, right? Crown shape Yeah, के होते हैं. So they are yeah. proteins. The crown like structure. Yeah. Okay, so they are made up of See, protein, right? अगर या बेसिकली मैं एक बहुत ही सिंपल सी वो चीज बोलूंगा कि उसके डिटेल्स में जाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज दैट इज टोटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट। वायरोलॉजी में चले जाओगे आप, Okay, तो ठीक उसमें है. सिर्फ आप इतना समझो कि बेसिक जो वायरस का स्ट्रक्चर है उसमें जो हाँ जी, पॉइंटिंग आउट वाली जो चीजें ऐसे प्रोजेक्ट हो रही हैं, हाँ वो जी, यू दैट द पर्टिकुलर वायरस यूजेस इट फॉर अटैचिंग इटसेल्फ टू द सेल। मतलब वो सेल में जो अटैच करता है, उसके रिसेप्टर्स होते हैं सेल पे, हाँ जिससे वो जी. सेल पे अटैच कर पाता है अपने आप को, तो हम्म, वो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. एंड do you think a vaccine is going to be available this year? मतलब डेवलपमेंट, टेस्टिंग, लार्ज अमाउंट में सप्लाई करना, ये सब इस साल हो पाएगा? और यार, मैं लोगों को डराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि वेरियस कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर डूइंग देयर बेस्ट, और एटलीस्ट 80 to 85 कंपनीज हैं विच आर अंडर प्रोसेस। ओके, द वैक्सीन इज अंडर प्रोसेस, अंडर रिसर्च एंड अंडर ओके, ट्रायल्स, जिसमें से अराउंड आई थिंक 5 या 6 ऐसी कंपनीज है जिनके पास डेफिनेटिव ट्रायल के वो हैं, ओके, रिकॉर्ड्स हैं, जो अपने ट्रायल में काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो ठीक है. जो आप अपना इंडिया का सेरम है, जो हम्म, मिस्टर पूना वाला जो जिसके वो है, तो इवन वो कह रहे हैं कि अगर अप्रूव हो जाता है तो बाय सितंबर हो सकता है वो वैक्सीन प्रोड्यूस कर लें। ओके, पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ हाई ठीक है. पॉसिबिलिटी, या ओके, सो प्रोड्यूस एंड देन तो we'll also लेट्स have सी। to, I mean लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट? सो सो वहां पे आएगा सबसे बड़ा चैलेंज, बिकॉज या, व्हाट आई थिंक इज दे हैव टू फिगर आउट अ पर्टिकुलर वे जिससे वो एक मास जो है उसको इम्यूनाइज कर पाए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, being able to immunize such a big population is a very big task, be it दैट्स India, राइट, be it any other country। एनीवे, या, किसी भी कंट्री की या पूरी पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करना इज अ वेरी बिग चैलेंज। तो या, वो दैट्स राइट. चीज जो है देखनी है कि किस हिसाब से अप्रोच करी जाती है। ठीक है, ठीक है. एंड ऑल्सो लास्ट थिंग अबाउट I'll कोरोना I'll फॉर just नाउ. I'll हाँ just जी. uh, I'll just give you a reference from this movie called Contagion, if you have heard हाँ, about it। I've watched तो it, yeah. उस मूवी में वो या what they do is when the vaccine is ready, तो वो लोग क्या करते हैं, they immunize people according to their birth dates। जैसे Yeah, फॉर that's right, yeah. एग्जांपल एक पर्टिकुलर मंथ है मार्च का, मार्च में 1 मार्च को जिन जिन लोगों का बर्थडे होता है, इस दिन उसके सिर्फ हिसाब इन्हीं से. लोगों को वैक्सीन मिलेगी, हाँ उसके जी, हिसाब से। तो ठीक है. क्या पता दे फॉलो दैट यही स्ट्रैटेजी। करेंगे, yeah, they might do that. So या दे last माइट। thing for last thing on corona for now, I mean आगे immunity and सब है, but for this I just wanted to know about something came up in between hydroxychloroquine and also plasma therapy. So या ये दोनों या effective हैं for curing, or because people were actually overdosing on this stuff, hydroxychloroquine. या Yeah, राइट। एक्चुअली hydroxychloroquine is basically a drug used in India as a anti malarial drug। तो okay. उसके बेसिकली जो उस पे ऊपर जो रिसर्च हुआ था, वो ये Mm-hmm. रिसर्च हुआ था कि अगर इसका कुछ यूटिलिटी है तो वो ये उस उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं। मतलब द Okay. पीपल लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज हु आर इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद कोविड इन्फेक्टेड पीपल, कोविड Mm-hmm. 19 इन्फेक्टेड पीपल। तो Okay. उनके लिए इस चीज का यूटिलिटी था। जो लोग घर बैठे हुए हैं, हु आर ओवरडोजिंग ऑन इट, दे आर जस्ट रुइनिंग देयर हेल्थ, बिकॉज चीज क्या है कि Oh, दिस वाज अ yeah. डेस्परेट मेजर, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हैज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। Okay. Okay. या तो ठीक है. साइड इफेक्ट्स जो हैं, जब भी एक पर्टिकुलर डॉक्टर कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करता है तो ही बैलेंसेस आउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। अगर Yeah. नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं, बट नेगेटिव इफेक्ट्स विद द ड्रग आर ऑलवेज देयर।
वो Okay. इन कंपैरिजन टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स, मतलब जान पे बनी आई है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। आपको जान बचानी है तो ही आप वो ड्रग दोगे, भले उसको उल्टी होए बाद में तो आप वो नहीं देखोगे, सही बस बात उसमें जान है। बच रही है आप ये जान देखोगे। बचानी है, या हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली तो पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट सेल्फ जो मेडिकेशन और सेल्फ डोजिंग की जो ये हरकतें लोग करते हैं ना, दिस इज लाइक द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। ओके, नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। ठीक है। एंड अबाउट प्लाज्मा थेरेपी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लाज्मा थेरेपी? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, द तबलीगी गाइस दे आर सेइंग टेक आउट प्लाज्मा एंड ऑल ऑफ दैट। या So is that doable for for a large तो population? see, I would again quote an article which I read on WHO ka site. So even Mhm. WHO people say that it's called, the whole term which is used is covalescent plasma therapy. I'll tell you why Okay, it is called covalescent plasma therapy. तो वो लोग भी कह रहे हैं अभी WHO वाले कि फिलहाल के लिए दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, इट इज नॉट अ डेफिनेटिव क्योर। oh okay, इट okay, इज नॉट अ डेफिनेटिव क्योर, इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। मैंने वही बोला ना, दीज आर डेस्परेट टाइम्स। तो हाँ जी, पीपल that's right. आर, एवरीवन इज ट्राइंग, जो जितने भी पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिगरिंग आउट ट्रीटमेंट्स, जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने Mhm. गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट सम और That's दी right. अदर वे जिससे इसको प्रिवेंट कुछ कर पाए एटलीस्ट इसको। कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके, हाँ जी, प्रिवेंट कर पाए, कंट्रोल कर पाए। हाँ तो जी। जो वो कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, इट बेसिकली मींस कोवेलेसेंट, द वर्ड कोवेलेसेंट मींस taking the plasma from Mhm. people who were infected but now are cured। ओके, वो ठीक है। इन्फेक्ट हुए थे, वो ठीक हो चुके हैं, तो उनका हम लोग ब्लड लेंगे जिसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। नाउ व्हाट इज द ओके, रीजन बिहाइंड दैट? उसके पीछे रीजन ये है कि जो पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है और वो ठीक होके आया है, मतलब उसके ब्लड में उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज आ गए, राइट, ठीक है, एग्जैक्टली तो ठीक है, एंटीबॉडीज के लिए ही प्लाज्मा थेरेपी जो है वो परफॉर्म करी जा रही है, ओके, और उसके ठीक पीछे है, कोई ऐसा मेजर रीजन नहीं है। बट अगेन यहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाता है कि जो वायरस है वो म्यूटेट कर रहा है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स जो हैं वो फिगर आउट हो रहे हैं, डिफरेंट Mhm. सिम्टम्स आ रहे हैं, एंड इट इज वेरी नॉर्मल फॉर अ वायरस। इफ यू कंसिडर अ वायरस विच बेसिकली रेप्लिकेट्स इनसाइड अ सेल, तो उसमें Mhm. म्यूटेशंस जो होते हैं वो कई बार नॉर्मल होते हैं, मतलब इट इज वेरी नॉर्मल फॉर अ वायरस टू म्यूटेट इजीली। या दैट्स राइट, ठीक तो है, म्यूटेशन वर्ड जो है वो वायरस के लिए बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, तो वो इजीली ठीक म्यूटेट है, करके अपने जिस तरह से वो इफेक्ट कर रहा है वो चेंज कर सकता है। चेंज कर सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या एक क्वेश्चन है मेरे को छोटा सा, डू यू थिंक द गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट इज लाइंग अबाउट द नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ, एक्टिव केसेस का, और आर देयर एक्चुअल केसेस इसमें जितने बता रहे हैं? बिकॉज आई थिंक इट्स वे हायर, बिकॉज इंडिया में सिर्फ 30,000 33,000 ऐसा पॉपुलेशन एक्चुअली यानी। यहाँ यहाँ पे ना एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, इफ यू नो कंपेयर द रेशियो ऑफ जितने लोग पॉजिटिव आए हैं, जितने लोग रिकवर हुए हैं, जितनी डेथ्स हुई हैं और जितने टेस्ट हुए हैं, तो उसके हिसाब से जो नंबर है वो टैली करता है कहीं ना कहीं। लेकिन ओके, जब बाकी की जनता की टेस्टिंग होगी, जब बाकी की जनता की टेस्टिंग होगी, तब एक्चुअल सिनेरियो समझ में आएगा कि इंडिया जो है वो किस लेवल पे है अभी फिलहाल हाँ इन्फेक्शन जी, से रिलेशन में। ठीक है, तो ओके। जब तक टेस्टिंग स्पीड अप नहीं हो जाती, तब तक तो ऑब्वियसली बात कोई है, बता फिगर नहीं आउट करना सकते, बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वही है, हाँ, ठीक है, क्योंकि वही है ना, 80% जो चंक है वो एसिम्प्टोमेटिक। ओके, या दैट्स राइट, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, या ठीक है। सो वी टॉक्ड अबाउट कोरोना, वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू प्रिवेंट इट, मास्क पहन के एंड वॉशिंग योर हैंड्स ऑल द टाइम, बट द मेन या थिंग यू से इज गोना बी इम्यूनिटी, राइट? सी इम्यूनिटी जो है, यू कैन कॉल इट एज अ प्रिवेंटिव मेजर, बिकॉज या, एक्चुअली क्या है कि दिस इज अ नोवेल वायरस। नोवेल वायरस का मतलब होता है विच हैजंट बीन न्यू, डिस्कवर्ड और डॉक्यूमेंटेड अर्लियर। तो या, इसके लिए बॉडी जो है वो ऑलरेडी सेंसिटिव हो जाती है, बिकॉज जब तक आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन के एक्सपोज नहीं होती, तब तक वो एंटीबॉडीज नहीं बना सकती। हाँ जी, दैट्स तो राइट। एंटीबॉडीज अगर नहीं होंगी तो नो मैटर हु यू आर, मतलब भले आप शेर के बच्चे हो या जो हिंदी में नॉर्मली वैसे बोलते हैं, हाँ जी, आपको भी इन्फेक्शन हो ही सकता है।
तो दैट इज ठीक नॉट है, अ बिग डील। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या तो मतलब तो फोर्थ एंड फिफ्थ बाकी टारगेट में बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी, या is- बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी बिकम्स इम्पोर्टेंट बिकॉज वो एक तरह से एक प्रिवेंटिव मेजर हो गया विच यू आर ठीक है, डूइंग फ्रॉम योर साइड। वही है ना, जो कर सकते हो वो तो करो। हाँ जी, ठीक है। तो मतलब फिफ्थ और फोर्थ स्टैंडर्ड में तो ये सिखा देते हैं इम्यूनिटी, मतलब बेसिक इसका ये होता है अबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन, वायरसेस, बैक्टीरिया, हम्म, राइट। हम्म, तो मैंने ये पढ़ा था दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, द वन दैट वी आर बोर्न विद हाँ, एंड द वन दैट वी बिल्ड थ्रू आउट आवर लाइफस्टाइल एंड वैक्सीन के थ्रू। या तो हाँ। यही दो होते हैं, राइट? और इज देयर अनदर, आई मीन वैक्सीन एंड लाइफस्टाइल मेन होता है व्हाइल वी ग्रो अप, राइट? I'll just explain immunity और उसके types थोड़ा सा डिटेल में। ओके। बेसिकली इम्यूनिटी जो है वो डिवाइड करी जाती है इनटू एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी। हम्म। तो जब वन विच यू गेट, जब आप बॉर्न होते हो, मतलब बॉर्न होने के बाद जो इम्यूनिटी आती है वो, हाँ जी। एक तो जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ रही हैं थ्रू जो ब्रेस्ट मिल्क जो रहता है, व्हाई डॉक्टर्स इन्फ्लुएंस सो मच ऑन फीडिंग अ चाइल्ड विद ब्रेस्ट मिल्क एज सून एज यस। पॉसिबल आफ्टर अ डिलीवरी। उसका हम्म। रीजन, वन ऑफ द रीजन इज दिस कि उसकी वजह से भी इम्यूनिटी बिल्डिंग होती है बच्चे की। कोलोस्ट्रम, राइट? राइट। तो ठीक है। कोलोस्ट्रम जो रहता है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो एक मदर अपने चाइल्ड को देती है, दे आर ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो ओके। वो एक तरह से बच्चे में ट्रांसफर हो जाती हैं। ओके। तो वो हो ठीक जाती है। है, यू कैन कॉल इट एज एन इम्यूनिटी जो बचपन से हमारे साथ है। और हम्म। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी जो हम लोग थ्रू आउट आवर लाइफ जैसे जैसे हम चीजों से एक्सपोज होते जाते हैं और हाँ जी। हमारे अंदर एंटीबॉडीज बढ़ती बनती जाती हैं, उस हिसाब से वो हम लोगों के पास आ जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ठीक है। फिर फर्दर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में और पैसिव इम्यूनिटी में। हम्म। अब एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस हो जाएगा? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जो आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाए। हाँ जी। अगर आपकी बॉडी एंटीबॉडीज खुद से बना रही है तो उसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव। बोलेंगे। और ओके। अगर आपको कोई वैक्सीन लगी है, या हम्म। वैक्सीन लगी है तो भी खुद ही एंटीबॉडीज बनेंगे, सॉरी। हाँ तो जी। अगर आपको एक्सटर्नली एंटीबॉडीज कहीं से मिल रही हैं तो हम्म। वहां पे आ जाएगा हम लोगों का पैसिव इम्यूनिटी, जहाँ प्री फॉर्म्ड जो है हमारे पास एंटीबॉडीज आ हाँ रही जी। है। आई हैव अ क्वेश्चन, इज तो टेटनस जो, एन एग्जांपल? या सर, टेटनस, यस। ओके। टेटनस में ठीक है। क्या होता है, लेकिन टेटनस में हम लोग डायरेक्टली एंटीबॉडीज नहीं इंजेक्ट कर रहे हम लोग। हाँ जी। टेटनस का क्या ठीक रहता है। है, टॉक्सॉइड रहता है। टेटनस ओके। का टॉक्सॉइड रहता है जो कि बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो after that, main is, you said, throughout our lifestyle includes the type of food we eat, water, and या how we एवरीथिंग, detox ourselves, right? Mental and physical. एवरीथिंग, एवरीथिंग। ठीक है, so let's सी talk about, इम्यूनिटी जो है वो बहुत हाँ जी, छोटी छोटी चीजों से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। योर स्लीप, योर डाइट stress, पैटर्न, योर yeah, एवरीडे लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है। So let's talk about food for now. You want to start talking about food? या ठीक है, so food is the best way, I would say, to have a strong immune system. I mean, इतनी सारी diets हैं बाहर, paleo, keto आ गया, and plant based, and without proper knowledge, people are obviously gonna miss out on the important macros and micronutrients, right? वेरी Micronutrients are ट्रू। the vitamins, minerals. So I would say having a balanced diet with the source of each macronutrient, well, fats, proteins, carbohydrates, balance में, and with vegetables and fruits for your micronutrients, vitamins, minerals. That's gonna help you build a good immunity, right? Because you have a balance of everything. वेरी ट्रू। Yeah. So what would you say? I ये mean, चीज क्या है कि, हाँ जी, या मैं यहाँ पे वो चीज ऐड करूंगा कि सी, दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, हाँ एवरीवन जी, नोज कि दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स। और सब लोग जो है वो घर पे हैं, कई लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं स्पेशलिस्ट जो डाइट्स होती हैं, स्पेशलिस्ट डाइट्स में मेरा कहने का मतलब है जैसे ये आपकी कीटो हो गई, पीलियो हो गई, हाँ दीज जी। आर ऑल स्पेसिफिक डाइट्स। That's right. So instead of focusing on those, just focus on traditional food because Indian food जो है it is sufficient. Indian Yeah, food has everything. अगर आप that's right. spices उठा लो तो spices में आपको सारे antioxidants मिल जाते हैं। Turmeric, आप paprika, कोई भी सब है spice कुछ, उठा right? लो,
एवरीथिंग सब कुछ आ जाता Yeah. है। तो उसके बाद अगर आप नॉर्मल अगर इंडियन फूड भी खा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल लोग, जैसे हमारा देसी घी हो गया, हाँ देसी जी. घी इज वेरी गुड फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आपकी एनहांस होती है। और उसके अलावा जिन लोगों को वेट गेनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए Mhm. देसी घी वर्क्स वंडर्स। Yeah, that's और right. जॉइंट्स के लिए, देन Mhm. योर स्किन, योर हेयर, एवरीथिंग, देसी घी इज Yeah. ऑल इन वन रेमेडी कह सकते That's हो right, उसको आप। yeah. In earlier times, people used to, on the side have amla or aloe vera साथ में लेते थे या कुछ भी मतलब for a good vitamin C intake or nutrient intake. But आजकल I don't see people doing that. It's like they're lacking in protein and their micronutrients. So protein It's तो all Indian food about में, being yeah, informed. yeah, that's right. So I would like for you to talk on the protein intake for now. I mean, how to include more protein लोगों के लिए. I mean, without supplements. क्योंकि Indian food में all they can do is soya, dal, and I mean paneer. Mhm. That's all good sources, right? Um, And yeah, vegetables, how yeah, important do you definitely. think they are to build a good immune system? Vegetables, I think they have the topmost, pedestal when it comes to immunity building, because agar you are not see, as they say, you become what you eat, right? That's right. Yeah. So whatever you are eating, it directly influences your genetic material. Okay. मैं Yeah, ऐसा that's इस right. वजह से बोल रहा हूँ, I'll just put some light on it. बेसिकली हाँ क्या जी. होता है कि जो आप खाना कंज्यूम करते हो, वो खाना ब्रेक डाउन होता है, Mm-hmm. अगर आप फैट्स खा रहे हो तो फैट्स विल बी फर्दर ब्रोकन, Yeah. आगे फॉर ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड्स, फिर प्रोटीन Mm-hmm. अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाँ जी. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स में. जो हाँ होते हैं जी. वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ या जी. सिंपल तो ग्लूकोज में, बेसिक राइट. वही है, वो कन्वर्ट कंजन ब्रेक डाउन हो के वो अल्टीमेटली होएगा क्या, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो Mm-hmm. वो जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज बिकमिंग यू। Yeah, that's right. एंड व्हाट यू ईट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस योर फ्यूचर जनरेशंस। अगर That's आप right. एक Yeah. बैलेंस डाइट, हर चीज इन अ प्रॉपर मैनर खा रहे हो, Mm-hmm. तो इट विल डिटरमाइन हाउ योर चिल्ड्रन विल कम आउट। उनकी, क्योंकि आजकल अगर आप देखो तो बच्चे पैदा हो रहे हैं विद सच बैड इम्यूनिटी, Yeah. डाइजेशन इश्यूज। फिर Low उसके iron. बाद जब वो Yeah. थोड़े लो आयरन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो Yeah. बचपन से बच्चे पैदा हो रहे हैं विद स्टमक इश्यूज, मतलब डाइजेशन Oh. इश्यूज। Oh yeah. तो या Lactose intolerance and all of that, right? Gluten free stuff. उसके parents की वजह से. एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली तो मतलब हम लोगों ने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है, वी हैव रेस्ट्रिक्टेड आवरसेल्व्स, वी वर नेवर मेंट टू लिव लाइक दिस। Yeah, that's आई right. एम, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स जो थे, दे वर नॉट लाइक दिस। इफ यू कंपेयर द अर्लियर ह्यूमन फॉर्म्स, Mm-hmm. तो खुल सब लोग ओपन में रहते थे, दे यूज्ड टू हंट, दे Yeah. यूज्ड टू जस्ट Eat प्ले raw, आउटसाइड, raw meat. Yeah. ईट रॉ। एग्जैक्टली। और Yeah. पहले के अगर आप अपने, वो तो चलो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, अगर आप अपने नाना नानी लोगों, दादा लोगों के टाइम के लोगों को देख लो, तो वो लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते थे। हाँ जी. That's right. Yeah. तो व्हाट वाज द आजकल. रीजन बिहाइंड इट? द The बेसिक रीजन वाज देयर डाइट, yeah, देयर exactly. It डाइट was एंड देयर fresh, लाइफस्टाइल। वो fresh and without chemicals and all of that. आजकल तो हर चीज में इतने या chemicals होते हैं. या दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस डेफिनेटली। Yeah. The next thing is water. So water helps to carry oxygen to our cells, right? Which results in या proper functioning of our systems. तो जितना या पानी पिएंगे उतना toxins, the impurities वो बाहर आएंगे, and it's gonna बाहर आएंगे, stop them from building up, right? And have a negative impact राइट। on our immune system. So that's यप। water is a very important thing which people forget about. वो दिन डेफिनेटली। में एक ग्लास पीते व्हाट हैं and then भूल जाते हैं पानी कुछ है. एक्चुअली वाटर का काम जो है वो सिर्फ टॉक्सिन्स एलिमिनेट करने तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता। हाँ जी. वाटर पानी जो का तो है, बहुत सारा. Yeah. they water plays a very important role. Human body is made up of 70% of water, so if you want to live, you Exactly. need water no matter what. Yeah. एक अभी currently I am actually doing this sports nutrition का course, तो उसके थ्रू मुझे ये पता चला कि even a 2%, Mhm. as low as 2% decrease in water
या जो आपका वाटर कंटेंट है टोटल बॉडी का, एन एथलीट्स परफॉर्मेंस इट रिड्यूसेस ड्रास्टिकली. एनर्जी बहुत कम हो जाती है इवन इफ यू हैव 2% डिहाइड्रेशन, राइट? उसकी एग्जैक्टली. तो वाटर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और स्पेशली समर्स में व्हेन यू स्वेट अ लॉट, you not only expel out water, you are expelling out electrolytes as well. That's right, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, तो ऑल दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी. That's right, बिल्कुल सही है. हाँ जी. सो हम जब खाने की बात कर रहे थे तो आप मेरे को बोल रहे थे कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू हैव गुड इम्यून सिस्टम्स, एंड हमने बात किया कि नाउअडेज इट्स ऑल केमिकल्स एंड स्टेरॉइड्स एंड खाने में मतलब सब कुछ ही होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस. So it does more harm than actually helping us in building an immune system. That's true. Micronutrients missing होते हैं खाने में सारे because of all the chemicals. So I would suggest कि मतलब कोई supplements हैं जो people they should have their hands on during especially these times to help them reach their micronutrient goals. Right? See, micronutrients में तो if you look at micronutrients, तो if you have a good fruits का intake एंड वेजीज का इंटेक, दो वो बहुत ठीक बात है कि आजकल कुछ भी प्योर नहीं मिल रहा और सब कुछ पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स और इन सब चीजों से ट्रीटेड वाला सामान मिल रहा है. हाँ जी. लेकिन even my family has done this. What we have done is कि जो भी important vegetables हैं वो हमने अपने गार्डन में लगा ली. Oh, that's nice. It's fresh, organic, right? Yeah, it's fresh, and आप देख रहे हो कि क्या उग रहा है, और जैसे ही वो उग जाता है आप उसको अंदर लाके अच्छे से वॉश करके, washing your vegetables is very important. No matter where you source it from, especially during this time. ये हम लोगों ने टॉपिक दो उठाया नहीं earlier. तो yeah, this is also important. तो coming back, तो basically what we were talking about is कि vegetables जो हैं they are very easy to grow. ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा maintenance लगता है. हाँ जी. तो मेरे गार्डन में भी ककड़ी जो रहती है, it's like it's like a cucumber, तो ककड़ी जो है elongated cucumber kind of thing, right? Elongated, yeah, exactly. तो ककड़ी हो गई, then we have spinach, then we have तुलसी, तो हर ही घर में होती है. हर घर में होती है, exactly. और फिर उसके बाद हो गए मिंट लीव्स हो गए. ये बेसिक जो सब्जियां होती हैं, you can easily grow them. Yeah, and it's gonna help you detox. Like तुलसी इतना अच्छा detox agent है. Yeah, very true. Very good for building up immunity. Yeah. देसी इलाज. तो हमने बात करी थी इम्यूनोग्लोबिन के बारे में, आपने मेरे को बताया था पहले, which are made up of protein. And we also talked about Indian diets not having enough protein. Very true. So the first supplement would be whey protein, right? For reaching your protein goals. Protein goals अगर आपके डाइट से मीट नहीं हो रहे, हाँ, definitely. हाँ जी. So क्योंकि इंडियन डाइट में हमने हाँ जी. Yeah, continue please. I was saying कि इंडियन डाइट्स में पहले जमाने में सब खाते थे. There used to be at least a dal and a paneer sabzi, or at least something that had a good amount of protein. Good amount of protein. What people do now is like carbs with carbs, aloo puri, and stuff like that. So there is no protein. मतलब कहीं प्रोटीन का बहुत डिफिशिएंसी हो रही है इंडिया में. यहाँ पे बात आ जाती है पेरेंट्स को एजुकेट करने की. व्हाट आई थिंक इज बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता है कि अरे मेरा बच्चा ये खा ले, अरे मेरा बच्चा वो खा ले, तेरा बच्चा दुखी क्यों हो रहा है, अरे वो सब्जी आलू के पराठे खा ले, ये दे दो. तो यार देखो, आलू के पराठे खाने में भी कोई ऐसी इशू बुरा नहीं है, बट बुरा नहीं है बिकॉज आलू के पराठे इफ यू आर प्रिपरेशन अच्छी है और आपको पता है कि आपका इनटेक जो है पूरे दिन का किस हिसाब से चल रहा है. If you calories, you're reaching your macros and calories. Yeah. तो उसमें फिर आलू के पराठे भी ऐड करने का कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होता. नहीं, I was talking about like, I was saying if they are like substituting that for a good amount of protein, or at least good amount of sabziyan or something. Yeah, definitely. वो तो है कि see, it comes down to the choices that you make all the time. Yeah. Choices. अब आपका अगर एक पर्टिकुलर कैलोरी गोल है, वो आप चाहो तो पूरा दिन भर चॉकलेट मीठा स्वीट्स खा के भी पूरा कंप्लीट कर सकते हो. हाँ जी, that's right. Yeah. और अगर आप उनको चॉइसेस चेंज करो तो you can you can choose better and live better.
Yeah, that's true. Yeah, ये तो है. You gotta educate the parents, right? So educating parents is very important. ठीक है. So जो लोग, I mean, the people who can afford, it's obviously something like a luxury, but the people who can afford, they should go for a whey protein to meet their protein requirements. It's gonna obviously help them increase their immunity, make it better, right? तो आप मेरे को immunoglobulins के बारे में Yeah. थोड़ा और बता दो, अगर if you want to talk about it. See, basically क्या होता है कि प्रोटीन जो है it is very important for your body, not just for building muscles. क्योंकि Yeah. लोगों का बेसिक माइंड में एक कंसेप्ट बैठा हुआ है कि प्रोटीन खाओगे Protein तो is equal to muscles. मसल्स ही बिल्ड होंगे. हाँ. हाँ या जी. तो वो कंसेप्ट जो है वो ठीक है, चलो ठीक है, वो उसका एक पार्ट है, लेकिन बाकी जो उसके पार्ट्स हैं वो ये हैं कि प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में ज्यादा ही आपका हाँ जी. मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है. हाँ बिकॉज जी. प्रोटीन से आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा. देन हाँ जी. तीसरी चीज आ जाती है कि जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हाँ. जैसे आपके आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम, जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, हाँ इवन जी. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. तो Okay. प्रोटीन जो है इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस योर इम्यूनिटी. तो अगर आपका प्रोटीन इनटेक कम है तो आपका इम्यूनिटी इफेक्ट होएगा, डेफिनेटली होएगा. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. That makes sense. Okay. So the next supplement I was adding is gonna be spirulina. It's a superfood. Obviously, आपको पता है, it's a superfood for a reason. It has 4 times more protein than meat per serving, and it has all the vitamins and minerals. Vitamin C को छोड़ के इसमें सारे vitamins मिलते हैं. So I thought कि सही. spirulina is a हाँ, very सही. good thing to add into your supplement regime if you have it. सप्लीमेंट्स. Yeah. तो बट स्पिरुलिना के केस में एक थोड़ी सी चीज जो है स्पेशली इन इंडिया वो थोड़ी सी गड़बड़ ये हो सकती है कि इफ यू गो इनटू डिटेल्स दे से दैट स्पिरुलिना इज नॉट एफडीए रेगुलेटेड. okay. सो इफ Okay. अ सप्लीमेंट इज नॉट एफडीए रेगुलेटेड ना, तो उसमें क्या होता है कि मिक्सिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें अच्छा. एडल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. Okay. 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 तो Okay. That makes if sense. you find a product, yeah, if you find a product which is regulated by FDA, because हाँ most जी. of the supplements आप आके देख लो उसमें कई सारे जगह लिखा होता है कि this is not FDA regulated. That's right. Yeah. So you got to choose your product wisely. Yeah. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. बाकी spirulina definitely is a Superfood, right? superfood. Immunity हो गई, और कई लोगों को जैसे rhinitis वगैरह, yeah, it's a superfood definitely. ठीक है. Perfect. And what do you think about a multivitamin? मतलब, do you think it's important? See, क्योंकि जितना multivitamin, हाँ जी, जितना fruits and हाँ. vegetables हमें चाहिए होता है to meet the daily requirements of micronutrients, वो I don't think आजकल की vegetables में या fruits में हो पाता है. जो पहले कहते थे an apple a day, I mean, you're a doctor, I don't want to say it, but but an apple it used to be the magic fruit. Yeah, It's not considered that that is anymore because of the way it's grown. या ट्रू. वो है कि प्रैक्टिसेस जो हैं वो खराब हो चुकी हैं. हाँ जी. जैसे आप मोस्ट ऑफ द एप्पल्स इन द मार्केट जो होते हैं, अगर आप देखो तो उन पे वैक्स लगी होती है जस्ट मेक इट Exactly. शाइन. Yeah. तो बाहर से ही गड़बड़ होना शुरू हो हाँ. जाता है. सही बात है. So you think a multivitamin is going to be essential, right, to meet your vitamins and minerals? या यू तो कैन okay. ऐड ऑन अ मल्टीविटामिन, बट मेक श्योर कि कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं ऐड करो. ठीक कोई है. भी बेसिक सा जिसकी जान पहचान मल्टीविटामिन नहीं. जो आपको, हाँ जी. या जो ठीक है. इजीली मिल जाए, हाँ जी. जो इजीली मिल जाए. ठीक है. ठीक है. ठीक जस्ट है. टू नेम वन जो आपको इजीली एक फार्मेसी शॉप पे मिल जाएगा, इज ए टू जी करके एक मल्टीविटामिन आता है. I इट्स have the बेसिक, same कोई भी ले multivitamin. सकता है उसको. ठीक है. या ठीक है. तो इट्स बेसिक. ठीक है. So we added whey protein, spirulina, and multivitamin. The next one we talked about natural colostrum. एक इसका supplement form भी आता है. I know this company, उनका they have certifications obviously, but उनका बहुत natural आता है. I was thinking of testing it because उसके बारे में बहुत सुना. It's obviously the first milk produced by cows and humans for their babies. So it's gonna help you in obviously boost your immunity and also in reducing inflammation जो body में हो जाती है. यार जो ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज अ बिट कंट्रोवर्शियल, बिकॉज Okay. जो चीज जिस तरीके से देने के लिए बनी हुई है ना, इफ यू एक्सपेरिमेंट ऑन दैट, उसमें कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत होती ही होती है.
what Okay. I have experienced, because मैं भी fitness field में since 8 years हूँ, 8.5 years, 8 years हो चुके हैं मुझे. हाँ जी. तो being a doctor, I can say this कि जो चीज जिस हिसाब से होने को बनी है उसको वैसे हाँ ही जी. रहने दो. Naturally. Yeah, ठीक that is है. better. ठीक है. बाकी अगर आपको if you want cheaper sources of protein, तो एक मैं आपको ये आइडिया दे सकता हूँ कि जैसे आप दूध लो, मिल्क में अगर आप मिल्क को, I think it's there in one of your videos as well. Lemon, right? जब आप मिल्क को लेमन, एग्जैक्टली, Yeah. तो उसमें Whey मिल्क protein जो बन है जाता उसका है. डुअल यूज हो हाँ जाएगा. जी. एज हाँ आप जी. उसको पनीर की तरह यूज कर लो, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको एज अ वे प्रोटीन Whey सोर्स की protein. तरह यूज कर लो. That's right. हाँ जी. या ठीक है, ठीक है, ठीक है. And so ये थे all the supplements, the ones we were talking about. And I have another question on supplements. Vitamin C is called the immunity supplement. मतलब या it's supposed to have, the immunity boosting, the main supplement. I mean, not supplement, vitamin, राइट. right? So आजकल लोग, they are super dosing on vitamin C. They are, stuffing themselves with vitamin C in foods and in supplements, mostly in supplements, मतलब Lim-C and all of that, So is हाँ, that safe? Lim-C is like the most popular. Yeah, Lim-C is the most popular. exactly. So they're actually super dosing on it, and they think they're going to be able to kill the coronavirus if it's entered them. वो तो obviously नहीं होगा, but as a preventative वो measure, नहीं होगा. is it going to be helpful? सी, वो चीज मैं जो पॉइंट कोट किया था कि दिस इज अ न्यू वायरस जिसका पहले कभी एक्सपोजर ह्यूमन बॉडी पे हुआ नहीं है. Yeah, so they're तो testing उसकी अलग-अलग वजह चीजें. से तो टेस्टिंग तो ठीक है, लेकिन हाँ जी. अपना इम्यूनिटी एक लेवल तक ठीक रखना इज वेरी गुड. लेकिन Yeah. जो एक वायरस जैसे बॉडी कभी कांटेक्ट में आई नहीं है, तो वो उसके लिए ऑटोमेटिकली ससेप्टेबल हो जाती है. हाँ जी. ठीक है. तो उसमें अगर आप किसी चीज का ओवरडोज कर रहे हो, उसका कुछ यूटिलिटी नहीं है. ओके, ठीक है. It's gonna be flushed out. जितना बॉडी को चाहिए उतना ही लेगी. Others, I mean, it's gonna be, उतना ही vitamin C is लेगी. gonna be flushed out. नहीं तो you are just putting excessive load on your body, nothing else. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay, so the next things, I mean, I have 2 tricks. That's what I call them to build immunity. One of them is called detoxification, जो हमने बात किया, tulsi and all of that. And the second one is fasting. So, I mean, detoxification में तो आपको आ जाता है green tea, black coffee, work out and make your own Yeah. detox water with cucumbers, mint and all of that. Hmm. And then fasting में मैंने ये देखा है कि people usually fast only for religious reasons. कि मतलब Yeah. व्रत रखना है या रोजा रखना है ऐसे. So I think now it's time कि they do it for their own health to build immunity. Since Southern California में जो scientists हैं, they proved that fasting for at least 1 day per week is gonna help build new white blood cells. हाँ, And that's true. That's true. Yeah, it kind of flips a regenerative switch. पूरा Regenerative restart कर दे process, yeah. system को. Yeah. So इससे, I mean, कैंसर जितनी बड़ी बीमारियां kill कर चुके हैं लोग फास्टिंग से, prevent कर चुके हैं, kill कर चुके हैं. Even the elderly people. Actually, there is this book which I was reading. I don't really remember the name of the Okay. author, but it is a really good book related to basics of fasting. Okay. तो अगर आप वो बुक पढ़ते हो, तो जो एक लॉन्गेस्ट फास्ट एक बंदे ने किया है, आई थिंक दैट वाज मोर देन, मतलब अ कंटिन्यूअस फास्ट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीच में उसने कुछ ब्रेक लिया या और कुछ. प्योर Okay. फास्ट, दैट वाज हाँ जी. मोर देन 170 days. More Oh, than wow. 170 days. So fasting has proven to be a life changer. Okay. अगर आप भी, हम लोगों के भी अगर आप उसमें जाके देखो रिलीजियस उसमें, तो हाँ जी. फास्टिंग जो थी वो बेसिकली, अगर उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन था वो यही था कि फास्टिंग जो है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी इम्यून सिस्टम immunity बढ़ाता है. enhance हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Yeah, that's what people do. तो जब अगर आप, religious कुछ आता है तो हाँ, करते हैं fast. But if it's for your own health, they're gonna be हाँ, thinking twice. ये कैसे करूँगा मैं? नहीं करेंगे. Very Yeah, true, very true. yeah, so immunity के बारे में बात Typical करा, Indian कोरोना के बारे में. mentality. Yeah. So हमने सबके बारे में बात किया. Now I think this is like my favorite part, जिसके मैं शुरू से वेट कर रहा हूँ. And I think most लोग यही देखना चाहेंगे, end का. So it's the conspiracies. I have a few theories जो बहुत लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में, and I think you're going to be interested in it too, right? So the first one आपने बहुत सुना होगा. China introduced 5G,
And as soon as they started testing it, there were about 1,000 birds in the area that just dropped dead. Yeah. So इसका rumor ये चल रहा था कि 5G आपका immune system इतना weak कर देता है that the disease was already there in the air. It's just affecting you now because of the immune system being low immunity. Yeah. So what do you think about it? I mean, don't talk about it as a doctor. What do you think about it as a conspiracy? नहीं. मतलब क्या सोचो किसी ने करने के लिए डाला है? अगर आप इसको एज अ नॉर्मल लेमैन भी देखो ना, तो एवरीबडी नोस कि जितना ज्यादा ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, बी इट एनीथिंग, नॉट जस्ट नेटवर्किंग, आप कुछ भी ले लो, आप भाई फैक्ट्रीज पे चले जाओ, जिस हिसाब से जो मैकेनिकल पावर इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर पावर इंक्रीज हो रही है, और जिस हिसाब से चीजें स्विच हो रही हैं अब टुवर्ड्स ऑटोमेशन, तो एवरीथिंग हैज अ कॉन्सिक्वेंस. क्योंकि जैसे आपने you talked about 5G, तो everything जो है it emits a particular frequency. Everything emits a particular frequency. तो जो उससे frequency बाहर emit हो रही है, that frequency is not just bad for us, it is bad for our coming generations as well. क्योंकि उससे हमारे जीन में चेंजेस आ रहे हैं, उसमें हमारे जेनेटिक्स चेंज हो रहे हैं. It is affecting us to the molecular level. Oh, okay. Yeah, that is messed up. इतना deep impact है. Yeah, it is messed up because people will not understand this. क्योंकि जो बड़ी companies हैं, we are going into the conspiracy part now. तो जो बड़ी companies हैं, they are just after making money. They are just earning billions. They are extracting out billions and billions of dollars from people. And what are they giving in return? Faster to be internet. very direct, to be very direct, they are just giving death in return. Literally, they're giving death in return. That is true, yeah. So I would say that people need to open up their eyes and look Start around. getting educated. हो क्या रहा है? या हो क्या रहा है, देखो तो यार. उनको सिर्फ ये है अच्छा इंटरनेट मिल रहा है, तेज इंटरनेट आ रहा है, ज्यादा अच्छे से स्ट्रीम कर पाएंगे मूवीज. अभी you would have read those posts जो आती थी छोटी छोटी कि if you are given this much amount of money and एक forest में घर है, there is no Wi-Fi, there is no nothing, and will you go and live there? So you might do it for the money, but अभी जब actually वैसा scenario है, कोई तैयार नहीं है. लॉकडाउन, we are सब घर पे, कोई तैयार नहीं घर में रुकने के लिए. तो वही सही बात है. ये तो फोन ने, मूवीज ने, सबने बचा के रखा हुआ है, वरना तो सब बाहर होते अभी. अरे if I being a doctor, I sometimes go out, बाहर देखने के लिए क्या कैसा चल रहा है. मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम कर चुका हूँ, तो कभी कभार जैसे जाना पड़ जाता है, तो if you move out during the early hours, जैसे after 6-8 early in the morning, before 10 obviously, तो उस समय पे लोग एक्चुअली वैसे निकले होते हैं जो अभी लेटेस्ट, अगर आपने मीम भी पढ़ा हो, कि ऐसा लगता है जैसे 10 बजे से पहले कोरोना उठता नहीं है, 10 बजे के बाद कोरोना उठ रहा है. तो एक्चुअली सिनेरियो वैसा ही होता है, लोग आराम से घूम रहे होते हैं. मेरे घर के यहाँ पे स्पीड लगी है. मेरे यहाँ पे all IAS students in राजेंद्र नगर, so they are all roaming around here. यहाँ पे सब फ्री घूम रहे हैं बाहर, and I'm like, वही खत्म तो होने दो यार. यार अब बेचारा प्राइम मिनिस्टर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अंदर रहो, नहीं रहोगे तो this is actually true. If corona spreads in India as it did in Italy and other countries, the way it is spreading in US, रुकेगा नहीं यहाँ पे. Actually हम लोग 30 years पीछे चले जाएंगे. 30 years पीछे चले जाने का मतलब ये है कि we have to start everything again with everything scratch. over again. That's right. Yeah. So I don't think people would like to do that. No one would like to do that. They're not thinking of the consequences. वो सिर्फ अभी का सोच रहे हैं, अभी बाहर जाना है. नहीं सोच रहा. Actually नहीं सोच रहा. Yeah. The second conspiracy theory is that corona was made in a lab as a bioweapon. That's 5G से भी ज़्यादा famous ये वाला है. Because US का president believes that, and there was this thing coming up on news कि there's gonna be a war because of that. ये न्यूज़ वाले तो ऐसी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, but that's what I heard. Did you watch the video I recommended? The David Icke wala, right? The other day. I watched this. Did you watch that video? I watched one. Yeah.
I mean काफी सारे थे, लंदन रियल पे थे काफी सारे. I only watched it London Real. before we started the video. Mhm. Yeah. So even that guy says कि अब I don't know how true it is, but I don't want to get into this because ये actually बहुत controversial चीज हो गई है. You know, That's true. if it actually was made in a lab, then you know, obviously बात है ये चीज क्या directly indicate कर रही है कि China wants to dominate the world और Attack. वो सबको अपने आगे झुकाना चाहता है. Mm-hmm. और वो कैसे कर रहा है? It's using a biochemical, you know, weapon to do Yeah, so that. I'm gonna already point out that it's a conspiracy theory. It's not my thing, you know. Before they take my video Definitely down. not our thing. Definitely not our thing. Definitely. So, आपका कुछ है? What any conspiracy theories you have in mind? What do you think? See, I तो not really. I actually am not thinking about any conspiracies right now because the situation is such It's कि really messed इस up. समय yeah, it's actually very messed up and people, you know, they are freaking out. Yeah. तो you know, मैं तो यही बोलूंगा कि जितनी ज्यादा आप चीजें पढ़ोगे आप उतना ज्यादा घबराओगे. तो हाँ जी. उससे बेटर क्या है, you know, try diverting your attention. This whole Okay. podcast, this whole, you know, this whole thing which we are doing here today, Yeah. ये सिर्फ आपको कोरोना के लिए एजुकेट करने के लिए नहीं है, ये आपको ये बताने के लिए है कि यू नो यू शुड वर्क ऑन योर डाइट, you should start working on yourself, you know, Yeah. start Making developing a yourself skill, strong. maybe, you know, Yeah. start developing a new skill, you know, learn something, just Mm-hmm. try diverting yourself away from that corona shit. Yeah. And stop going out. Yeah. Stop going out. Definitely. I have one last thing, conspiracy mein. It was made in China, obviously, but people get offended when I say Chinese virus. I don't know why. So they are saying that it was made to control the population of China, to take out the older generation as they were non-productive for the country. Mhm. Yeah, because in the beginning they said it's attacking the older people, right? Because of low immunity. Yeah, low Yeah, immunity, very true. so they were like trying to take out the old ones क्योंकि उनसे कोई income नहीं आ रही थी, plus the population would be decreased वहाँ की. Population, it was basically a population control measure. Yeah, that's what I तो mean. That's another अभी theory. you would have heard about this news. ये बहुत ज्यादा अभी बीच में चल रहा था. खैर इंडियन मीडिया तो वैसे भी हर चीज को बहुत ज्यादा इशू बनाती है. अभी बीच में ऐसा आया था कि चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज, 2-3 ऐसी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं जिन्होंने बताया कि उनके 80 लाख to 1 करोड़ यूजर्स जो है वो एकदम से दे वैनिश्ड, गायब हो गए. जिनके I've कोई heard वो that. नहीं मिल रहे. Yeah, I've heard that. तो Yeah. हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. आई डोंट नो व्हाट्स द पॉसिबिलिटी. Yeah. क्योंकि अभी अगर आप रिसेंटली न्यूज देखो तो चाइना ने भी बोला है कि उनके पास जितने केसेस थे वुहान में, उन्होंने 50% केसेस जो है वो अभी ज्यादा रिवील किया. उन्होंने हाँ जी. काफी सारे केसेस कंसील किए थे. अभी उन्होंने नया नंबर दिया है कि हाँ हमने कंसील किए थे केसेस, हाँ जी. हमने सारे केसेस नहीं बताए थे. Even US, when they did a scan around the Chinese, the Wuhan village, and उसके obviously बाहर China में पूरा, they said there was a gas that was being emitted in excess. Okay. The one that comes out when you're burning dead bodies, like even animals when you're burning them, right? So I think कोई gas emit होती है. Yeah. आपको सुना पता होगा इसके बारे में. So they said Yeah. कि there were more traces of that than ever. So China is probably burning the bodies without giving information out. Yeah, there is a high probability. यार देखो इसमें ये चीज क्यों दिमाग में बार बार स्ट्राइक करती है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन जो है, इफ यू कंसिडर द पॉपुलेशन डेंसिटी, तो चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है. Yeah. तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी इतनी ज्यादा है और आपके यहाँ से कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो स्टार्ट हुई है, और तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने उसको इतनी जल्दी कंटेन कर लिया और वो स्प्रेड नहीं हो गई अपने लेवल तक. एग्जैक्टली बाहर चली गई, आपके अंदर ही खत्म हो गई पूरी. आप पूरी वर्ल्ड सफर कर रही है और वुहान खुल चुका है, इट्स ओपन फॉर बिजनेस. Yeah. And I also heard they bought all the shares जो यूएस में गिर गए थे. They have invested at a lot of places. I don't know what's going on exactly, but अभी बीच में ऐसी भी न्यूज आई थी कि जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसने HDFC में भी 1% शेयर खरीदा है. और बाकी काफी सारी यूएस 1% शेयर, मतलब that one single percent is also a lot because that costed them billions of dollars. तो वो भी बहुत बड़ी बात थी.
और उसके अलावा दे हैव इन्वेस्टेड इन अ लॉट ऑफ कंपनीज इन यूएस एज वेल. कई सारी कंपनीज को तो उन्होंने इनफैक्ट यूएस वाली को खरीद लिया है जो ऑलमोस्ट हाँ, एट द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी थे. I heard that. Yeah. So it might be a या plan of theirs. I mean, theory, conspiracy theory. Might be a यू plan of नेवर theirs. नो, यू नेवर नो. Yeah. Yeah. So that was तो all that was in my head that I wanted to clear with you. I mean, what you thought on it. there is still a lot of stuff, but वही है कि Yeah. just this period is nerve wracking. The correct word to हाँ use जी. right now is nerve wracking. तो Nerve wracking. Yeah. इतना ज्यादा उड़ती उड़ती खबरों पे ध्यान ना दें और सही बात है. जस्ट अपने फैमिली के साथ आपको रहने का टाइम मिला है. जस्ट स्टे विद योर हाँ फैमिली, जी. एंजॉय विद योर फैमिली, डू Yeah. व्हाटएवर यू कैन, बिकॉज जैसे वो बोलते हैं ना, ये टाइम जो आपको मिला है सेल्फ वापस नहीं डेवलपमेंट के लिए, ये आएगा. वापस नहीं आएगा. Yeah. ये टाइम नहीं मिलेगा आपको कभी. That is right. So would you like to add anything else? मैं कुछ और बताना चाहोगे आप लोगों को? Or immunity or theories or food or anything? Supplements? मैं तो बस इतना ही बोलूंगा यार कि कोरोना तो बहुत ज्यादा हो चुका है. Mm-hmm. तो जैसे अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पीपल हु स्टार्ट पैनिकिंग. कोई ऐसी Yeah. सिचुएशन होती है जैसे बहुत ज्यादा द टर्म व्हिच वी गिव इट इज मास हिस्टेरिया. Yeah. Yeah. नहीं Yeah. सॉरी, मास हिस्टेरिया तो इज अ डिफरेंट Mass टर्म. hysteria तो तो I mean mass hysteria ये हो गया ना, people gather up and start going crazy about it. या वही एग्जैक्टली वही Yeah. चीज कह रहा हूँ. हाँ जी. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि लोग पैनिक कर रहे हैं. तो मैं तो यही बोलूंगा कि यार जस्ट चिल आउट. ऑब्वियसली बात है कि सिचुएशन चिल आउट करने वाली नहीं है, लेकिन तब नहीं भी है. यू हैव टू हाँ. डाइवर्ट योर अटेंशन. Yeah. You have to divert your attention. You have to focus on something else. Start meditating, maybe. I don't know, even meditation helps in increasing immunity. Yeah, For that's that right. matter, Detoxification, mental detoxification. mental detox, it is very necessary these days, Yeah. especially during such situations. Mm-hmm. Mental detox is very necessary. तो बस वही Yeah. बोलूंगा यार, just try to keep yourself calm. And अगर ऐसा कुछ होता है कि घर में कोई बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तो Mm-hmm. start talking to people. Yeah. Approach. You can approach me. I'm ready to talk. I'm always ready to talk. And ठीक है. if you don't want me to talk, I can even listen. I don't mind listening. You're a good listener. Nice. Yeah, I don't mind. चलो, that's really So, nice. I had, हाँ जी. You were saying हाँ, something? नहीं, never done. Okay. I'm done. I was just gonna tell I'm done. everyone कि I really hope that सबके doubts and most of the doubts that they had have been cleared on immunity and corona and the theories. And I mean, और सब लोगों ने सुना ना सुना, I mean, end में forward करके they must have listened to the conspiracy theories. Interesting part. Yeah. So thank you so much, Aman, for taking your time out. बहुत सारी information मिली आपसे, बहुत अच्छा लगा बात करके. It was a pleasure. Total pleasure. Thank you so much. And that's it for today. And you can always reach out to us, to me and Aman. मेरा YouTube channel है. I'll add all the contacts in the description box below. And don't forget to hit like and subscribe. Thank you so much, guys. And thank you, Aman. Thank you. Thank you so much. Take care. Thank you. Take care. When I let go, you decide if you ever